I am going to discuss the new unit, and that name of that unit is magnetic effect of current and magnetism. Amongst the different effects of the electric current, one of the major effect, as you know, when electric current is passes through a conductor, then it produces a heating effect. In same way, magnetic effect is also produced due to the electric current. It means when electric current is passes through a conductor, then a magnetic field is produced around it. So amongst the different effect of the electric current, one of the most important effect of the electric current is what here? Magnetic effect here. So in this chapter, I am going to discuss about the magnetic effect of current. As it is clear, magnetic effect of current means here our aim is to discuss how much magnetic effect produced when electric current is passes through a conductor. And in this one, first thing I would like to tell you about the concept of magnetic field. So first thing, concept of magnetic field. You know, like electric field, here I would like to tell you first thing here, electric field is always denoted by E. A small electric field denoted by dE. Same way, magnetic field is denoted by D. And a small magnetic field we denoted by what here? dB. First thing, dE. So like electric field is what here? The field or the region around a charge in which another charge we experience a force. किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स. So that region is called what here? Electric field of that first charge here. In same way, what is the concept of the magnetic field? The region around a magnet in which a magnetic needle will experience a torque and rest in a definite direction. किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी मैग्नेटिक निडल को रखने पर वो मैग्नेटिक निडल क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क. और उस टॉर्क के कारण ही उसकी निडल क्या करती है? रोटेट. सो द रीजन अराउंड ए मैग्नेट in which a magnetic needle will experience a torque and rest in a definite direction is called magnetic field. I hope maybe in the class 9th there was one experiment in which you did like this one. One magnet, you took one magnet like this one, and when you will place a magnetic needle at a different place, then finally you will get the direction of the magnetic needle and you make a dot with the help of the pencil, and when you will join this one, then it comes like this. Similarly, again, second line, this one, and this one. But remember this, these two magnetic line of forces will never intersect to each other. It means all these shows what here? Direction of the magnetic line of forces. This one is the magnetic line of forces. Means when you will place the magnetic needle here, then you will experience the direction of the magnetic field at that point is along the tangent of it, means in this direction. So simply you can say the region around a magnet in which a magnetic needle will experience a torque is called magnetic field. Now we come on this topic, Oersted experiment. Actually Oersted ने ही ये देखा था कि जब किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. एंड फॉर दिस, टू शो दिस वन, ही परफॉर्म सो मेनी एक्सपेरिमेंट हियर. तो ओरेस्टेड ने देखा क्या कि ही टुक एक कंडक्टर एबी. उन्होंने एक कंडक्टर एबी लिया और इस कंडक्टर एबी को एक सोर्स ऑफ करंट मतलब एक बैटरी या सेल और एक की से जोड़ दिया. एंड ही ऑब्जर्व दैट when key was open, जब की ओपन था और जब की ओपन था तो इस समय इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही थी. And when there was no any current in this wire AB, so on that time
this magnetic needle which kept near this conductor AB, ये magnetic needle जो इस कंडक्टर AB के पास रखा गया, उसके ऊपर कोई रोटेशन नहीं हुआ, वो अपने ही डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ में रेस्ट में था, मतलब उसके अंदर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं किया और न तो ये रोटेट किया. इट मींस इट रेस्ट इन देयर ओन डायरेक्शन. Why? Because there was no any current in AB, so there was no any magnetic field. But remember this magnetic needle will experience the torque in presence of magnetic field. जहां magnetic field होगा वहीं पे ये रोटेट करेगा. यहां पे इस समय AB के पास ये नहीं रोटेट किया, इसका मतलब इसके चारों तरफ इस समय मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अब ओरिस्टेड ने क्या किया? नाउ ही कनेक्ट द की, मींस की ऑन, and after connecting the key, now the current will start to flow in the conductor from A to B. अब ओरिस्टेड ने इसमें क्या किया? की को क्लोज किया, और जैसे की को क्लोज किया तो यस सोर्स ऑफ करंट, ये बैटरी जो है या सेल, इसको करंट दिया A to B. इसका मतलब इस कंडक्टर AB में करंट गया A से B, and he observed that as the current passes through this conductor AB, then this magnetic needle will experience a torque and it deflect from this original position. ये इस ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया, और अगर ये ओरिजिनल पोजीशन से अपने डिफ्लेक्ट किया तो अभी मैंने बताया है कि दिस विल बी डिफ्लेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब ओरिस्टेड ने बताया कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया तो इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या पैदा हो गया होगा? मैग्नेटिक फील्ड. एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक नीडल will experience a torque and rest in a definite direction. And also he observed that when we change the direction of current in this conductor, earlier the direction of the current was from A to B in this conductor, and now in this diagram he took the direction of current from B to A, and he observed that again the magnetic field is produced around this conductor, and this magnetic needle will experience the torque, but now this time the deflection of this magnetic needle is opposite to this one. It means as we change the direction of current in a conductor, then the direction of the magnetic field will also change. So ओरिस्टेड ने ये दिखाया एक्सपेरिमेंट करके कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट को पास कराया जाता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. डियर स्टूडेंट, यू नो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. करंट है क्या? चार्ज का फ्लो. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से ए मूविंग चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. Always remember this, a moving charge is always produce the magnetic field. Now the next topic, which is magnetic field due to a current carrying conductor. मतलब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जिसको किसने दिया? बायो एंड सेवर्ट लॉ. दिस वन इज आल्सो कॉल्ड बायो एंड सेवर्ट लॉ. एक्चुअली ओरिस्टेड ने हमको ये बताया कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, ये बताया ओरिस्टेड ने. और उसी ईयर में एक फ्रेंच साइंटिस्ट बायो एंड सेवर्ट ने डिड ए सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए by flowing the current in a conductor, and finally he gives a law. And according to this Biot-Savart law, if we will take a current carrying conductor of any shape, first thing, Biot-Savart law is applicable for any shape of the current carrying conductor. Let this xy be a current carrying conductor of any shape, and our aim is to find the magnetic field due to this current carrying conductor either at point P or at point P dash. ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है XY जो किसी भी शेप का है, और हमको निकालना है कि इसके कारण इस पॉइंट P पे या इस पॉइंट P डैश पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है. तो चाहे पॉइंट P लीजिए या पॉइंट P डैश, दोनों पॉइंट पे हमको निकालना है. And suppose this point P is lies at distance r, or simply you can say XY is a current carrying conductor, and for finding the magnetic field
ड्यू टू होल दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट P, पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? वी कैन एज्यूम होल दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल एलिमेंट। हम एज्यूम कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि पूरे इस कंडक्टर एक्स वाई को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया गया। एंड नाउ आई एम टेकिंग वन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, और उसमें से एक एलिमेंट हमने ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl। सपोज ये एक एलिमेंट हो गया उसका जिसका लेंथ है dl, तो इसमें करंट कितनी होगी? करंट तो I ही होगी। तो दैट IDL इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। इसका मतलब इस कंडक्टर XY को हमने ढेर सारे पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट में करंट तो I ही जा रही है, तो हर पार्ट एक करंट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और किसी एक करंट एलिमेंट को हमने ले लिया। नाउ आई एम टेकिंग ओनली वन करंट एलिमेंट एंड सपोज दैट करंट एलिमेंट इज व्हाट हियर DL and current in that one is I, so IDL is called this current element। इतना एलिमेंट हमने ले लिया। तो first we will find out what is the magnetic field due to this element, current element at point P। सबसे पहले हम निकालेंगे इस छोटे से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और पूरे कंडक्टर से निकालने के लिए हम उसी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। As already I have told you, magnetic field is denoted by B। Suppose magnetic field due to whole this conductor XY is denoted by B, so magnetic field due to a small current element, that one is denoted by dB। चूंकि ये करंट एलिमेंट छोटा है तो इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम होगी। तो सपोज आवर एम इज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, and suppose this point P is lies at distance r from this current element। इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P की, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है? r। तो बायो-सेवर्ट लॉ, he observed that what? According to बायो-सेवर्ट लॉ, the magnetic field due to current element IDL डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका मतलब इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB पैदा होगी वो इन सारे फैक्टरों पे डिपेंड करती है। He observed that first, the magnetic field due to this small current element at the point P is directly proportional to the current in that element। And how much the current in that element? I। Why? Because the current in this conductor is how much here? I। तो हर एलिमेंट में करंट कितनी होगी? I। तो फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट P which is dB is directly proportional to I। Second, the magnetic field due to this current element at point P is directly proportional to length of that element, means dB is directly proportional to dl। Again, the magnetic field due to this current element at point P is directly proportional to sine of angle between current element and line joining from point P to the current element। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा किसके बीच की एंगल है? ये थीटा है वो करंट एलिमेंट आपने जो लिया है, और उस पॉइंट P से इस करंट एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन, इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बी केयरफुल अबाउट दिस थीटा, इस थीटा को बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड फोर्थ, magnetic field due to this current element at point P is inversely proportional to the square of distance। तो बायो-सेवर्ट लॉ ने क्या देखा कि इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB पैदा हो रही है वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एंड व्हेन ही समराइज ऑल दिस रिजल्ट, then he found that dB is directly proportional to I dl sin theta
and inversely proportional to r square, so upon r square. So you can say dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square. And when we remove the proportionality constant, जब हम इस proportionality constant को हटाएंगे, तो now we introduce a new constant. तो हम वहां पे एक नया constant introduce कर देंगे, and that constant is called mu naught upon 4 pi. So dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Actually, this one is called Biot-Savart law. But remember this, here dv is the magnetic field due to this small element. Then how can we find the magnetic field due to this whole element xy? So magnetic field due to the whole element xy, we can find d is equal to whole integration of d. Dear student, always remember this, magnetic field is a vector quantity. So it has both magnitude as well as direction. So here by using this formula, we can find the magnitude of the magnetic field at distance r from this current element. But the question is here, how can we find the direction of this magnetic field? But before this one more thing I would like to tell you here. If you want to write this magnetic field in vector form, so also you can write in vector form like this one, dB is equal to mu naught upon 4 pi I, we can write here dl cross r upon r cube. This one is a Biot-Savart law. In what form? Vector form. You know, a cross b is equal to ab sin theta. Class 11 में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो a cross b is equal to ab sin theta. In same way, dl cross r is equal to dl r sin theta. And one r is cancelled by one r here, so you will get here dl sin theta upon r square. So magnitude again you will get like this one. So this one is a Biot-Savart law. But if in your exam it is asking you write down the Biot-Savart law in vector form, then you will write dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. This is the final result here. Now by using this formula we can find what here? Magnitude of that magnetic field. Now a question arises here, how can we find the direction of this magnetic field? There are so many rules is given in your book for finding the direction of the magnetic field. Like one rule I am giving you, जैसे एक रूल हम बता रहे हैं उसमें से क्या है? First rule is here, right hand palm rule. And according to right hand palm rule, अगर हम अपने right hand की उंगलियों को इस तरह से जोड़ें, इन चारों उंगली को एक साथ और इस थंब को अलग, एंड इफ वी प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमेशा हम इस थंब को किसके डायरेक्शन में रखें? करंट के डायरेक्शन में. और इन चारों फिंगर को टुगेदर एक साथ हम उधर की तरफ रखें जिधर की तरफ हमको जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो. मतलब कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको निकालना है, ये चारों फिंगर एक साथ उधर ही पॉइंट आउट रहेंगी. ये हमेशा करंट के डायरेक्शन में रहेगा. तो ये पाम जिधर भी रहेगा, अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू दिस पाम अपवर्ड होगी. अगर ये नीचे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड रहेगी. तो स्पेशली हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड और डाउनवर्ड डिनोट करने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हम बना दे, सपोज आई एम यूजिंग दिस सिंबल क्रॉस, तो क्रॉस बताता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, perpendicular to plane of paper, directed downward. इसका मतलब ये ऐसे रहेगा नीचे की तरफ ऐसे.
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अगर क्रॉस सिंबल बना है तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जैसे अगर हम ये पेपर ले लें, अगर हम कोई पेपर ले लें, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन इज ए पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और नीचे की तरफ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मतलब वो ऐसे रहेगा, या इसको करिए ऐसे, ये पूरा जैसे इसको करें ये डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और जब हम अपवर्ड कहेंगे तो ये ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड अपवर्ड। तो जैसे ये हमारा हाथ है, ये इस समय है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड, और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। So what symbol we will use? Cross is used for magnetic field perpendicular to the plane of paper directed downward, and a symbol dot is there. So this one is magnetic field perpendicular to plane of paper directed upward. These two symbols you learn. ये दो सिंबल याद करिएगा, एक डॉट और एक क्रॉस। तो क्रॉस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और डॉट में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। अब लगाइए यहां पे जरा राइट हैंड पाम रूल। हमने क्या बताया, ये फिंगर किधर रहेगा, और हमेशा राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड। जनरली ये हाथ उठ जाता है, लेकिन इसको हमेशा लगाइएगा। बेटर इस हाथ को उसमें पीछे कर लीजिए बाएं को, और जो बाएं हाथ से लिखते हैं भाई उनके लिए क्या बताएं, उनके लिए दूसरा ला बताएंगे। ये सुनो ऐसे, तो इसको करंट के डायरेक्शन में और इनको एक साथ उस तरफ रखेंगे जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। हमको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो इनको एक साथ इधर रखना पड़ेगा, और करंट इधर है, तो ये हो गया करंट के डायरेक्शन में, और ये एक साथ उधर हो गए जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पाम किधर चला गया, नीचे की तरफ। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड हो गया ये। तो क्या सिंबल यूज हो गया, क्रॉस। लेकिन अगर इस पॉइंट पी डैश पे निकालना होता, इतनी ही डिस्टेंस आर पे, यहां पे ले रहे हैं हम पी डैश, हम इधर ना लेकर इधर ले लिए, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होगा जो भी पहले निकाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो वही होगा यहां पर भी, लेकिन डायरेक्शन अब जरा लगाइए राइट हैंड पाम रूल। क्या करेंगे, इसको एक साथ इधर की तरफ, इसको करंट के डायरेक्शन में, ये किधर आ रहा है, अपवर्ड, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। आप पेपर पे लिखेंगे तो आप कहेंगे अपवर्ड, हम ब्लैक बोर्ड पे हैं इसलिए हम कहेंगे आउटवर्ड। तो जो चीज हमारे लिए आउटवर्ड होगा आपके लिए अपवर्ड होगा, जो हमारे लिए इनवर्ड होगा वो आपके लिए डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अपवर्ड आपके लिए, और यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड आपके लिए। अब एक और ला है, भाड़ में जाए सब ला, एक ला बस यूज करिए। आई होप मे बी ऑल ऑफ यू नो लेफ्ट एंड राइट, बायां और दायां ये सब जानते होंगे। तो सपोज दूसरा तरीका जो हम बता रहे हैं, यू ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज करिए ये कंडक्टर एक रास्ता है और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो पॉइंट आपके राइट हैंड साइड पड़े, इफ दैट पॉइंट इज लाइज ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमेशा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड डाउनवर्ड होगा। और अगर जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो हमारे लेफ्ट हैंड पड़ेगा, तो उस पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउन, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड। इन दिस केस हमने क्या बताया कि ऑलवेज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट डिपेंड्स ऑन यू
what law you are using for finding the direction of the magnetic field. आप कोई भी law लगाइए, it's not matter. But one law I am telling you, easiest method, you move in the direction of current. आप current के direction में move करिए. जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो आपके राइट हैंड पड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड क्रॉस लेंगे, और अगर आपके लेफ्ट हैंड पड़ेगी तो डॉट लेंगे, मतलब अपवर्ड. अब जरिए अगर आप ये रास्ता समझ की तरह आप मूव करेंगे, समझ लीजिए आपका रास्ता ये है और इस पे आप मूव करें तो आपका कौन सा हाथ इधर पड़ेगा? राइट. राइट का मतलब वहां पे क्या लेंगे? डॉट, क्रॉस. और ये पॉइंट किधर पड़ेगा? हमारे लेफ्ट. तो यहां पे क्या होगा? डॉट. लेकिन अगर यही करंट का डायरेक्शन हम ऐसे कर देते तब क्या होता? Now when you will take the direction of current like this one, so now when you move in the direction of current, अब आपका कौन सा हाथ इधर पड़ेगा? लेफ्ट. लेफ्ट पड़ेगा तो यहां पे हो जाएगा डॉट, और यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये किधर पड़ेगा? राइट. तो यहां हो जाएगा क्रॉस. It means on changing the direction of current, the direction of magnetic field will also change here. So dear student, today you go through this one here, what is the Biot-Savart law and how can we find the direction of the magnetic field. In the next video, then again I will give you the application of the Biot-Savart law. Thank you.